Good afternoon. Today I shall teach you the explanation of stanza number 7 and 8 of the poem The Fountain, composed by James Russell Lowell. It means the name of the poem is The Fountain and the name of the poet is James Russell Lowell. And you have to study stanza number 7 and 8. Those are the last stanzas of this poem. Now I am going to write it and you will read it attentively. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element, It is stanza number 7. And now stanza number 8. Glorious fountain. Glorious fountain. Glorious fountain. Let my heart be. Let my heart be. Fresh, changeful, constant. Fresh, changeful, constant. Upward like this. Upward like thee. Stanza number 7. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. In this stanza, the poet James Russell Lowell tells us that ceaseless aspiring, ceaseless means होता है विदाउट टेकिंग एनी स्टॉपेज, अबाध रूप से, निरंतर, लगातार, बगैर रुके. ceaseless विदाउट टेकिंग एनी स्टॉपेज, बगैर रुके. एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स होता है आगे बढ़ते रहना. फव्वारे का जल अबाध रूप से या निरंतर या लगातार ऊपर उठता रहता है, ऊपर बढ़ता रहता है. सीजलेस कंटेंट, सीजलेस मीन्स अबाध रूप से या निरंतर. कांस्टेंट, कंटेंट मीन्स होता संतुष्ट, सेटिस्फाइड. और फव्वारे का जल निरंतर या अबाध रूप से संतुष्ट रहता है. माने वो अपने स्वभाव के ऊपर, अपने जीवन के बारे में, अपनी गतिविधि के बारे में वो हमेशा संतुष्ट रहता है. डार्कनेस और सनशाइन. डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ नाइट एंड सनशाइन इज द सिंबल ऑफ डे. माने चाहे जो अंधकार हो, चाहे प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, ये वो तुम्हारा प्राकृतिक गुण है कि आपको रात या दिन से मतलब नहीं है. आप जो है वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप अबाध रूप से या निरंतर ऊपर उठते रहते हैं. और आप जो है अबाध या जो है वो निरंतर संतुष्ट रहते हैं अपने स्वभाव के बारे में, अपने गुण के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में. नाउ इन इंग्लिश, the poet tells us that the water of the fountain goes up without taking any stoppage. It runs continuously. The water of the fountain runs continuously without taking any stoppage. Without taking any stoppage, the water of the fountain goes up, runs
up. It has a non-stop quality of going up. And the other quality of the water of the fountain is that it is always satisfied. Meaning, the water of the fountain is always satisfied for its natural quality, for its natural life. Darkness or sunshine the element. Either it is the time of day or it is the time of night. The water of the fountain has no any difference. It is the natural element or quality or characteristic of the water of the fountain that without taking any stoppage, it goes up always and it is always satisfied. And by the help of this poem, the great poet of English literature has told us that a man should advance every time and a man should be satisfied always. Whether it is the time of happiness or it is the time of sorrow, a man should be always satisfied and it should be his or her natural quality. Means this poem gives us a good suggestion that whether it is the time of happiness or it is the time of sorrow, our natural element, our natural quality is that we should go up always and we should be satisfied always. Now, stanza number 8, that is the last stanza of this beautiful poem. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. Glorious means शानदार. Glorious means having the quality of fame. माने जो है वो प्रसिद्ध या ख्यात की जो है वो ख्यात के गुण को रखने वाला. फाउंटेन झरना, फवारा. देखिए यहाँ जो है वो एक निशान लगा हुआ है, एक पाई और नीचे एक जो है एक बिंदी रखी गई है. ये जो है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. मैंने संबोधित किया गया है. कभी जो है अपने अंतिम स्टैंजा तक आते आते, अपनी अंतिम रचना तक आते आते इतना जो भाव विह्वल हो जाता है, इतना भावुक हो जाता है कि वो जो है वो स्वयं फवारे को या झरने को सजीव मान करके, जैसे जैसे झरना उसके आगे जो सजीव रूप धारण कर लिया हो, उसको संबोधित करने लगता है. उसको जो है वो बोल उठता है, उससे जैसे बातें कर रहा है, उसको संबोधित करते हुए कहता है. क्योंकि ये निशान जिसके आगे लगता है, जहाँ लगता है, इसका मतलब उसको संबोधित किया गया है, वो जो है उससे बोला गया है. तो पोएट क्या इसमें कहता है? ग्लोरियस फाउंटेन, आए शानदार झरने, आए शानदार फवारे, आए महान प्रसिद्धि या ख्याति को रखने वाले फवारे. लेट माई हैट बी. लेट मीन्स होता है देना. लेट 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 माई हैट बी, मेरे दिल को दे दीजिए, मेरे दिल को प्रदान कर दीजिए. कवि कहता है आए ख्याति को धारण करने वाले या शानदार जो है झरने, मेरे दिल को प्रदान कर दीजिए. क्योंकि जो है जो चीज़ जो है दिल में जो है आत्मसात हो जाती है, ग्रहण हो जाती है, वो परमानेंट होती है, अस्थायी होती है, और जो चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो. इसलिए जो है कवि कहता है यह शानदार फवारे मेरे दिल को दे दीजिए. मेरे दिल को क्या दे दीजिए? आगे बताया है फ्रेश, माने जो है ताजगी, फ्रेशनेस, चेंजफुल, परिवर्तन से युक्त, कांस्टेंट, निरंतर जो है वो दृढ़. ये जो है दोनों शब्द जो एक दूसरे का अपोजिट हैं. दी टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. चेंजफुल मीन्स होता है परिवर्तन से युक्त, और कांस्टेंट मीन्स होता है दृढ़, जिसमें परिवर्तन ना हो. और अपवर्ड
अपवर्ड का मतलब जो है ऊपर की तरफ, जो उन्नति को प्राप्त कर रहा हो, जो आगे बढ़ रहा हो। लाइक माने के समान, और दी माने होता यू। यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, संबोधन चिन्ह है। लाइक यहाँ सिमिली अलंकार है, और यहाँ जो है वो आगे जो है आपको इंटरमीडिएट में या जो है वो अभी जान लीजिए, जहाँ जो है ये निशान लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, वहाँ जो होता है वो एपॉस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, संबोधन अलंकार। और जहाँ जो है लाइक सो या है, जिससे कविता की पंक्ति में आता है, वहाँ सिमिली अलंकार होता है। इसलिए यहाँ भी जो है एपॉस्ट्रॉफी है, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी है, यहाँ भी संबोधन, यहाँ भी संबोधन है। तो कवि जो है क्या कह रहा है, कवि जो है वो फवारे से क्या क्या गुणों को जो है ग्रहण करने के लिए कह रहा है। ऐ शानदार झरने मेरे दिल को बना दीजिए फ्रेश, ताज़ा बना दीजिए। क्योंकि जो है मानव के दिल में जो है संसार में रहते रहते जो भौतिक संसार है, तमाम बुराइयां आ जाती हैं। तो कहता है जब कोई चीज़ जब ताज़ी रहेगी तो उसमें जो है वो अनाप शनाप या जो है गलत चीज़ें नहीं आएगी। मेरे दिल को ताज़ा कर दीजिए, मेरे दिल में ताज़ी ला दीजिए, चेंजफुल, और मेरे दिल को परिवर्तनशील कर दीजिए। माने मेरे दिल में जो कमी है वो सब जो है उसको हटा करके, उसको परिवर्तित करके जो है अच्छाई ला दीजिए। और कांस्टेंट, और मेरे दिल को ऐसा दृढ़ बना दीजिए कि ताकि जो है वो अगर उसमें अच्छाई आ गई है तो हमेशा जो अच्छाई ही बसी रहे। अगर सुंदरता आ गई तो सुंदरता ही बसी रहे, दृढ़ बनी रहे, वो अचल बनी रहे, वो जो है निश्चल बनी रहे, और जो उसमें परिवर्तन ना हो। अपवर्ड लाइक दी। और अगला गुण ये मांगता है, अगली क्वालिटी मांगता है कि जैसे तुम जो है तुम हमेशा जो आगे बढ़ते रहते हो, वैसे मैंने प्रगति को प्राप्त करते रहते हो, वैसे मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो है तुम्हारे समान मैं भी आगे बढ़ता रहूं, आगे की जो है सोच रखता रहूं, और हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। है शानदार झरने मेरे दिल को ताज़ा बनाइए, परिवर्तनशील बनाइए और दृढ़ बनाइए अपने समान। इसका मतलब ये गुण जो है झरने में है क्या, ताजगी, परिवर्तन से युक्त और दृढ़ता, और ऊपर उठने की जो है वो तमन्ना भावना, आगे बढ़ने की भावना। तो कवि जो है इन गुणों को मानवीय गुण के तहत लाता है और इसको महान मानता है। इसलिए इन गुणों के लिए झरने से रिक्वेस्ट करता है, वो प्लीज फाउंटेन प्लीज गिव मी these qualities so that I might become like you. In this stanza, the poet addresses the fountain, saying that, "O famous or glorious fountain, you have many qualities, and I request you to give my heart these qualities that you have in your heart. I request you to give me freshness so that my heart be fresh like your heart. And I request you to give me changefulness so that my heart may be changeful like your heart. And constancy, nirantarta. And I want to take the habit of constant or strong will like you. And you have a good quality that you always try to go up, you always advance, you always go to your goal. So I want that the quality of having goal ahead, these qualities should be given to me by you. The poet addresses the fountain and he requests the fountain to give his heart freshness, changefulness and constancy, as the fountain has these qualities in its heart. And the last message is that the poet wants to have these qualities from the fountain, so is requesting to
the fountain again and again to have these qualities. Now, I want to finish this poem, and after it, I shall tell you some questions which are important for this good poem, which come in your examinations. I shall tell it in the next video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.